Hello to everyone. I hope you are fine. Now, in the last video, we solved exercise 8A, question 1 to 20. Now, no any question queries. Now, then in this video, we start exercise 8A, 21 to 28. 21 to last question. Now, starts question 21. 21 is 4x plus 7 upon 9 minus 3x equal to 1 by 4. ऐसे क्वेश्चंस हैं, हम सीधे सीधे यहाँ बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 4 की मल्टीप्लाई किसमें कर देंगे, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 4 in bracket 4x plus 7 equal to 1 9 minus 3x. Now 4 4 is 16x plus 4 7 is 28 equal to 9 minus 3x. x वाले नंबर को मैंने आपको बताया, x वाले नंबर को एक तरफ कर देते हैं तो 16x plus 3x equal to 9 minus 28. Now 16 और 3 19x equal to minus 19. Then x equal to minus 19 upon 19. 19 से 19 कैंसिल, x equal to minus 1. ये हमारा आंसर हो जाएगा. That is the question number 21. Now same to question number 22. 22 is question same to 22. Now 22 is 7y plus 4 upon y plus 2 equal to minus 4 upon 3. As the same condition we do by cross multiplication. BCM आप बिल्कुल कॉपी में BCM नहीं लिखेंगे, आप फुल फॉर्म लिखेंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 3 multiplied by 7y plus 4 and minus 4 multiplied by y plus 2. Now 7 3 21y plus 3 4 is 12 equal to minus 4y minus negative or positive will be negative, 4 2 is a minus 8. Now 21y plus 4y, 21y इसके इधर ट्रांसफर करेंगे plus 4y minus 8 minus 12. ये plus 12 है, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे तो minus 12. Now 21 और 25y equal to minus 20. Negative and negative will be positive, but sign will be negative. Then 25 equal to minus 20. Then y equal to minus 20 by 25. 5 4 is 20, 5 5 is 25. Y equal to minus 4 by 5. That is the answer. That is question number 22. Now comes to question number 23. That is question 22. Now starts to question number 23. Now in this question 23 is 15 in bracket 2 minus y minus 5 in bracket y plus 6 upon 1 minus 3y equal to 10 by 1. First of all, we open the bracket. Now how to open? 15 to the 30 minus 15y minus 5y negative or positive will be negative. 5 6 is 30 upon 1 minus 3y equal to 10 by 1. Now 30y 30 that is negative 30, that is a positive 30. They will be कट, एक नंबर पॉजिटिव और एक नंबर नेगेटिव दोनों कट कर देते हैं. माइनस नेगेटिव एंड नेगेटिव विल बी पॉजिटिव. माइनस 20y अपॉन माइनस 15 और माइनस 5 माइनस 20 1 माइनस 3y इक्वल टू 10 by 1. सीधे सीधे क्या कर देते हैं, BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन. BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो minus 20y equal to 10, 1 minus 3y. अब देखिए अभी हो जाएगा minus
20y इक्वल टू मल्टीप्लाई कर दिया 10 1 जा 10 माइनस 10 3 जा 30y नाउ माइनस 20y प्लस 30y इक्वल टू 10 या 10y इक्वल टू 10 या y इक्वल टू 10 बाई 10 y इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 ये हमारा आंसर हो जाएगा दैट इज द क्वेश्चन नंबर 23 नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन नंबर 24 is 2x. Now sin 2x minus 7 minus 5x upon 9x minus 3 plus 4x upon 7 by 6. Now first of all we open the bracket, then 2x minus 7 plus 5x. Negative and negative positive upon 9x minus 3 minus 4x. ये नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, नेगेटिव एंड पॉजिटिव विल बी नेगेटिव, देन 7 by 6. नाउ 2x और 5x दैट इज 7x minus 7 upon 9 में से 4 घटाएंगे तो 5x minus 3 equal to 7 by 6. Now what are we do? By cross multiplication. By cross multiplication BCM, but you don't write BCM, you write by cross multiply. 7x minus 7 equal to 7 in bracket 5x minus 3. By cross multiply कर दीजिए 7 6 जा 42 42x 6 7 जा 42 minus 6 7 जा 42 minus only 42 equal to 7 5 जा 35x minus 7 3 जा 21 7 3 जा कितना हो जाएगा 21. then 42x minus 35x equal to minus 21 plus 42. ये कितना हो जाएगा 7x 37x equal to 21, then x equal to 21 upon 7. x equal to क्या हो जाएगा 3. x equal to क्या हो जाएगा 3. That is my question number 24. Now starts question number 25. 25 is most important question. Now 25. Question is 25 is 25. m minus in bracket m minus 1 upon 2 is equal to 1 minus m minus 2 upon 3. Now sin here या कुछ नहीं है तो 1 है, या कुछ नहीं है तो 1 है. हम क्या कर लेते हैं दोनों को एक्शन में लेते हैं 1 2 या 2m minus 2 1 या 2 1 की मल्टीप्लाई m minus 1 में करेंगे इक्वल टू यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है. 1 और 3 का एलसीएम हम लेते हैं कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा 1 3 या 3 minus 1 ब्रैकेट में m minus 2. नाउ implies that ब्रैकेट ओपन करिए, ब्रैकेट ओपन कर देते हैं तो 2m minus 1 का मल्टीप्लाई m minus plus 1 upon 2 equal to 3 minus m plus 2 upon 3. Now 2m में से 1m घटा देंगे तो m plus 1 upon 2 is equal to 3m 3 और 2 कितना हो जाएगा 5 minus m upon 3. Now what are we do? BCM by cross multiplication. By cross multiplication कर देते हैं BCM, but you don't write BCM, you write by cross multiplication. 3 in bracket m plus 1 is equal to 2 5 minus m. Now sin here 3m plus 3 is equal to 2 5 is 10 minus 2m 10 minus 2m. Now sin m 3m plus 2m is equal to 10 minus 3. Then 3m or 2 5m is equal to 7. Then m equal to 7 by 5. That is the answer.
That is the question number 25. Now discuss to question number 26. Question number 26. Now see to question number 26. देखिए question number 26. 3x plus 5 upon 4x plus 2 is equal to 3x plus 4 upon 4x plus 7. क्या कर देते हैं हम लोग सीधे सीधे BCM, सीधे सीधे हम लोग BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 3x plus 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं 4x plus 7 में. उसके बाद 4x plus 2 की मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं 3x plus 4 में. देखिए अब रफ पे वर्क करिएगा, थोड़ा सा रफ पे वर्क करिएगा. रफ वर्क कर रहे हैं हम, देखिएगा 3x plus 5 का मल्टीप्लाई, 3x plus 5 का मल्टीप्लाई हमको कर देना है 4x plus 7 में. 4x plus 7 मल्टीप्लाई करिए. 4 3 या 12x स्क्वायर, 4 5 या 20x, 7 3 या 21x प्लस 7 5 या 35. 12x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 35. अब हम इसका मल्टीप्लाई जब इसमें करेंगे तो कितना आ गया, मल्टीप्लाई हमको लिखना है. देखिए ये रफ वर्क है हमारा, तो 12x स्क्वायर कब जब इसका मल्टीप्लाई हमने इसमें कर दिया तो कितना आ गया 12x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 35. अब हम क्या कर लेते हैं, अब सेम वैसे ही रफ वर्क पे हम 4x प्लस 2 का मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं 3x प्लस 4 में. नाउ सी 4 3 या 12x स्क्वायर प्लस 3 2 या 6x प्लस 4 4 या 16x प्लस 2 4 या 8. तो 12x स्क्वायर प्लस 16 और 6 22x प्लस 8. कितना आ गया 12x स्क्वायर, 12x स्क्वायर प्लस 22x प्लस 8. हमने क्या कर दिया, सीधे सीधे मैंने बाई क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया. बाई क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ. हमने रफ वर्क के अकॉर्डिंग जो आपने पीछे मल्टीप्लाई किया है, हमने 3x plus 5 का मल्टीप्लाई 4x plus 7 में कर दिया. जब मल्टीप्लाई किया तो हमारा आया 12x स्क्वायर प्लस 41x प्लस 35. फिर 4x plus 2 का मल्टीप्लाई हमने कर दिया 3x plus 4 में, तो इसका मल्टीप्लाई आया 12x स्क्वायर प्लस 22 प्लस 8. ऐसा आप चाहें तो रफ वर्क पे कर सकते हैं. देखिए अब इसमें 12x स्क्वायर से 12x स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, x वाला नंबर एक पास कर देते हैं. तो 41x माइनस 22x इक्वल टू 8 माइनस 35, 8 माइनस 35. अब हम क्या कर देते हैं 42 में से 41 में से 22 को हम सब्ट्रैक्शन कर देते हैं. 11 में से 2 गया 9, 3 में से 2 गया 1, कितना हो जाएगा 19x इक्वल टू 35 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 70. 35 में से 1 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 27. लेकिन किसकी संख्या दी है, नेगेटिव नंबर के लिए हमने नेगेटिव लगाया. देन x इक्वल टू माइनस 27 अपॉन 90. दैट इज द आंसर. दैट इज द आंसर. दैट इज द क्वेश्चन नंबर 26. नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 27. क्वेश्चन नंबर 27 देखिए ऐसे ही सेम है. क्वेश्चन नंबर 27 is in the question 9x minus 7, 9x minus 7 upon 3x plus 5 is equal to 3x minus 4 upon x plus 6. Now what are we do? क्या कर देते हैं सीधे सीधे इसमें भी BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, BCM बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यानी 9x माइनस 7 का मल्टीप्लाई हम कर देंगे x प्लस 6 में, और उसके बाद 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई करेंगे 3x माइनस 4 में. आइए जैसे हमने पिछली बार किया था रफ के अकॉर्डिंग हम लोग कर देते हैं. आइए देखिए देखिए 9x माइनस 7 की मल्टीप्लाई करना है x प्लस 6 में. ना मल्टीप्लाई तो 9x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 54x माइनस 42. देखिएगा 9x स्क्वायर
प्लस 54 में से घटा देंगे तो 47, नेगेटिव 7x है, ये पॉजिटिव 54x है, तो प्लस 47x माइनस 42 कितना आ गया 9x स्क्वायर, मल्टीप्लाई कर दिए तो आगे हमारा 9x स्क्वायर प्लस 47x माइनस 42। वैसे ही और एक और हमको मल्टीप्लाई कर देना है 3x प्लस 5 को मल्टीप्लाई कर देना है, 3x प्लस 5 का मल्टीप्लाई हमको करना है 3x माइनस 4। नाउ 3 3 is 9x स्क्वायर प्लस 3 5 is 15x माइनस 4 3 is 12x माइनस 20। एक्स वाला नंबर एक तरफ 9x स्क्वायर माइनस है प्लस है, प्लस की संख्या जगह से प्लस लगाइए, 15x में से 12x घटाइए तो 3x माइनस 20। आगे हमारा 9x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 20 नाउ implies that है, implies that लगाइए 9x स्क्वायर से 9x स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 47x माइनस इसको इधर ट्रांसफर कर दीजिए तो 3x माइनस 20 प्लस 42। अब 47 में से 3 घटा दीजिए तो 47 में से 3 घटा दीजिए 44x इक्वल टू माइनस 2 और 2 कितना हो जाएगा 42 में से 20 घटा दीजिए तो 22। इसकी संख्या आ जाएगा प्लस 3 प्लस 3, x इक्वल टू कितना हो जाएगा 22/44 यानी 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे टुडे इन दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 28। नाउ सी टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 is now see to question 28। 2 minus 7x upon 1 minus 5x is equal to 3 plus 7x upon 4 plus 5x। 4 plus 5x as do as usual by cross multiplication BCM, by cross multiplication BCM, but you don't write BCM, you write by cross multiplication। 2 minus 7x और 4 plus 5x is equal to 1 minus 5x और 3 plus 7x। now here 2 minus 7x की मल्टीप्लाई हमको कर देना है 4 plus 5x में, और 2 से कितना हो जाएगा 8 minus 4 7 is 28x, 5 2 जा 10x minus 5 7 is 35x स्क्वायर। नाउ 8 minus 28 में से 10 घटाएंगे तो 18x minus 35x स्क्वायर। क्यों हमने माइनस लगाया, क्योंकि यहाँ माइनस की संख्या अधिक है इसलिए हमने क्या लगा दिया माइनस लगा दिया, तो दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया 8 minus 18x minus 35x स्क्वायर इज इक्वल टू, अब सेम है, अब हम इधर भी मल्टीप्लाई कर देते हैं 1 minus 5x मल्टीप्लाइड बाय 3 plus 7x। 3 1 जा 3 हो गया माइनस 3 5 जा 15x माइनस 7 1 जा 7x, 7 की मल्टीप्लाई करने के x मिलेगा 7x, बट प्लस होगा क्योंकि यहाँ दोनों पॉजिटिव नंबर है माइनस 35x स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3 माइनस 15 में से 7 गया 8x माइनस 35x स्क्वायर। दोनों का मैंने मल्टीप्लाई करके कितना आ गया 3 माइनस 8x माइनस 35x स्क्वायर। नाउ सी हियर 35x स्क्वायर से 35x स्क्वायर कैंसिल। नाउ ये 8 दैट इज पॉजिटिव 3 माइनस 3 इक्वल टू माइनस 8x प्लस 18x, ये माइनस 18x को दो उधर ट्रांसफर करेंगे तो प्लस 18x हो जाएगा। ये आपका हो गया 5 इक्वल टू 10x या x इक्वल टू 5/10 या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/2। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 8 कंप्लीट हो गया। नाउ अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जो है 8b से स्टार्ट करेंगे। 8b के बाद संभवतः शायद हम लोग ज्योमेट्री की तरफ मूव करेंगे, जो हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। स्टूडेंट्स
टेस्ट जो टेस्ट हुआ अभी ऑनलाइन टेस्ट हुआ है, आपको पता ही है ऑनलाइन टेस्ट हुआ है। ऑनलाइन टेस्ट में है सारे लोगों ने बहुत अच्छा बहुत अच्छा मार्क्स गेन किया। इस टाइम भी वेरी हैप्पी कि आप जो है घर रहते हुए आपने हम लोगों के प्रयासों को जो है सफल बनाया। मुझे मार्क्स देख करके काफ़ी अच्छा हुआ। कुछ लोगों का मार्क्स जो है थोड़ा सा कम है, तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो लोग जो है नेक्स्ट टाइम जो है ऐसी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट टाइम उनका प्रिपरेशन जो होगा और बढ़िया होगा और अच्छा होगा। आपको पता है संभवतः आपको एक मैसेज मिला होगा कि अटेंडेंस, यू नो अटेंडेंस इज कंपल्सरी। अटेंडेंस आपका बहुत मस्ट हो गया है। अटेंडेंस मिनिमम कम से कम जो है 75% अटेंडेंस आपके होने चाहिए। और आपको पता भी है लास्ट 6 मंथ से जो है हम लोग ऑनलाइन की शिक्षा, हम लोग दूरस्थ शिक्षा के अकॉर्डिंग जो है हम लोग स्टडी कर रहे हैं। लेकिन क्या है कि इतना होते हुए भी आपने जो ऑनलाइन टेस्ट हुआ है उसमें आपका परफॉर्मेंस बहुत ही बढ़िया रहा, बहुत ही अच्छा रहा। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हम लोगों की इस मुहिम में, हम लोगों के इस अच्छे वर्क में आप लोगों ने भी घर रहते हुए जितना हम लोगों ने मेहनत किया उतनी ही मेहनत आपने घर रहते हुए भी स्टडी किया। आप धन्यवाद के पात्र हैं। हाँ स्टूडेंट्स, लेकिन जो है आप अब जो वीडियोस जाएंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे बिकॉज हाफ ईयरली एग्जामिनेशन गोइंग ऑन द 10 अक्टूबर के नियर अबाउट आपका हाफ ईयरली एग्जामिनेशन होने वाला है। अब जो है आप रजिस्ट्रेशन अपना करा लीजिए और कंटिन्यू करिए ताकि यदि स्कूल रीओपन होता है तो आपका 1 ईयर स्पॉइल्ड यानी खराब ना हो। इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन करा लीजिए, नहीं तो आने वाले 2-4-5 दिनों में एक रजिस्ट्रेशन एक नॉन रजिस्ट्रेशन ग्रुप बनने वाला है, व्हाट्सएप ग्रुप बनने वाला है। उसमें कहीं आप वंचित न रह जाएं। अभी तक आपने जो प्रयास किया है बहुत ही सराहनीय और बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि आप 25 नंबर में से बहुत से लोगों ने 25 पाया, किसी ने 21 पाया, किसी ने 22 पाया। दैट्स वेरी गुड। ये को अच्छा लगता है जब आप ऐसे ही अपने कंटिन्यू ऐसे ही रखें। आप इसको जो है आप कंटिन्यू रखें। आई होप कि इसको आप पूरी कोशिश करेंगे कि ऐसे ही ये कंटिन्यू रहे। हाफ ईयरली एग्जामिनेशन ऑफलाइन होगा, चांसेस बहुत ज़्यादा है ऑफलाइन होने की। मैक्सिमम चांसेस जो हैं हाफ ऑफलाइन होने के एग्ज़ाम, क्योंकि 21 सितंबर से है जो है 9 से 12 से लेकर के 12 तक 21 सितंबर से जो है स्कूल जो है वो रीओपन हो रहा है। संभवतः आने वाले मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर यानी 10 से 15 दिन यानी 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के अंदर हम लोग भी यानी 6 to 8 भी रीओपन हो जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपकी टाइम बहुत नुकसान हो चुकी है, तो आप ज़्यादा टाइम बिल्कुल नुकसान नहीं करिए, ऐसे ही कंटिन्यू करते रहिए। हम लोग भी पूरी कोशिश कर रहे हैं 100% देने की, और आप भी अपनी पूरी कोशिश करिए 100% देने की, क्योंकि आपकी जो थिंकिंग है डॉक्टर बनने, IAS बनने, PCS बनने, बहुत सारे लोगों की बहुत सारी थिंकिंग हैं। तो उस थिंकिंग को कायम रखते हुए आप ऐसे ही कंटिन्यूटी बनाए रखिए। जितने भी वीडियोस जाते हैं किसी भी सब्जेक्ट में, वीडियोस मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अब अगला वीडियोस जैसे ही यानी 7 से 9 यानी 9-10 एक्सरसाइज होने वाले हैं, उसके बाद केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के वीडियो जाएंगे। इसलिए वीडियोस मस्ट कंपलसरी है। थोड़ी सी नेट की प्रॉब्लम हो रही है, बहुत लोगों ने कहा है कि सर मेरा नेट स्लो है। आई होप बिल्कुल अंडरस्टैंड, हम समझ सकते हैं कि आपकी नोट स्लो हो सकती है, लेकिन इतना भी स्लो नहीं हो सकता है कि आप 24 घंटा देखें ही ना। आपको जब टाइम मिलता है वीडियोस को देखिए। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं, जो टॉपिक समझ में नहीं आता है, आप नीचे कमेंट ज़रूर करिएगा, ताकि हमको ये पता चले कि आपने जो है वीडियोस देख लिया है। ओके स्टूडेंट।